CRT English classes. I am Manisha Srivastava. Today I am here to explain chapter 2 of Flamingo book, which is for students of class 12th. The title of the chapter is Lost Spring, written by Anees Jung. In this video, I will tell you about the author, chapter sketch and characters, and detailed summary of the chapter. Now let's start with about the author, who is Anees Jung. Anees Jung, born on 1944 and died on 2011, studied in India and the USA. She began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad, and has authored several books. Her most noted work, Unveiling India, in 1987, was a detailed chronicle of the lives of women in India. Her book, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, in 2005, focuses on children from deprived backgrounds. Let's move on. Chapter sketch. These excerpts are taken from the author's book, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. This chapter is divided into two parts, continuing the author's first-hand experience with poverty and traditions prevailing in some parts of India. The first part describes the plight of the poor ragpickers of Simapuri. The second part describes the miserable condition of the bangle makers of Firozabad. Children, this chapter is divided into two parts. दो stories हैं और ये एक्सर्प्ट्स हैं. एक्सर्प्ट का मतलब होता है एक बड़ी नॉवेल का, एक बड़ी बुक का हिस्सा. इसमें दो बच्चों की कहानियां दी गई हैं जो कि डेप्राइव्ड बैकग्राउंड के हैं और पॉवर्टी स्ट्रिकन हैं, गरीबी के मारे हैं. देन आई टॉक अबाउट कि व्हाई इट इज टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग. चिल्ड्रन, आपको पता होगा कि चाइल्डहुड ह्यूमन लाइफ का सबसे प्रेशियस और सबसे खूबसूरत समय होता है और ये बहुत कम समय तक रहता है, मतलब सिर्फ 10-12 साल तक. इसी तरह स्प्रिंग या बसंत का मौसम पूरे साल का सबसे खूबसूरत मौसम होता है. आपने देखा होगा पीले पीले फूल सरसों के इसी समय खिलते हैं और ये लेकिन बहुत कम पीरियड के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है. इसीलिए बसंत के मौसम को चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है और यहाँ टाइटल क्या दिया है, लॉस्ट स्प्रिंग, यानी ऐसा बसंत जो खो गया. मतलब ये बात की जा रही है ऐसे दो बच्चों की जिनके बचपन कहीं खो गए. अब वो कहानियां क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. पहले कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. 3 मेन कैरेक्टर्स हियर. फर्स्ट वन इज साहेब. आई टोल्ड यू कि स्टोरी दो बच्चों की है, तो फर्स्ट वन इज साहेब आलम, हु इज अ रैग पिकर फ्रॉम सीमापुरी, दिल्ली. He has simple dreams. He believes in promises made to him. Second child is Mukesh, who lives in Firozabad. He is a boy belonging to a family of bangle makers in Firozabad. He dreams of breaking away from tradition and becoming a motor mechanic. And third main character is the narrator herself, Anees Jung, who is the narrator. Narrator कहते हैं जिसको कहानी सुनानी होती है, जो कहानी सुना रहा होता है. She is a social worker who empathizes with the slum dwellers and honestly portrays their pitiable lives. Narrator यहाँ पर कहानी सुना रही है दो बच्चों की जो अलग अलग बैकग्राउंड्स के हैं बट दोनों पॉवर्टी स्ट्रिकन हैं. Now I will tell you detailed summary of the chapter. The summary of the chapter. Children, earlier I told you that the chapter is divided into two parts. It is about two boys. So first story is about Sahib, who is the rag picker. Rag picker means कूड़ा बीनने वाला. Every morning the author meets Sahib and his friends scrounging for gold in the garbage dumps of a neighborhood. हर सुबह author यानी अनीस जंग मिलती है किससे, साहेब और उसके ग्रुप से, जो कूड़े के ढेर उसमें पड़े रहते हैं अगल बगल में, घरों के बगल में. उसमें ये लोग स्क्राउजिंग गोल्ड्स मतलब
सिक्के खोजा करते हैं गार्बेज में, कूड़े में। साहिब एंड हिज फैमिली belongs to Bangladesh but they have left their home a long time ago. साहिब और उसका परिवार एक्चुअली बांग्लादेश का रहने वाला है, लेकिन उन्होंने एक लंबे समय पहले अपना घर, अपनी जगह छोड़ दी है। Storms washed away their fields and homes, reducing them to a state of abject poverty, which they left behind in the hope of finding a better life. तूफान आया था बांग्लादेश में, जिसने उनके खेत, उनके घर सब डुबो दिए, खत्म कर दिए, और उन्होंने वो जगह इस होप में छोड़ दी कि शायद उनको कहीं और जाने पर एक बेटर लाइफ मिल सके। That is why they came to this city looking for gold. इसी वजह से वो एक इस जगह पर आए जो कि है सीमापुरी, दिल्ली का एक कस्बा जैसा है, जहाँ पे सिर्फ रैकपिकर्स ही रहते हैं। उन्होंने एक बस्ती जैसी बसा रखी थी जिसको सीमापुरी कहते थे, और वो यहाँ पर इस शहर में आए थे गोल्ड यानी सिक्कों को ढूंढने, पैसों को ढूंढने के लिए। The author asked साहिब why he does rag picking and does not go to school. ऑथर साहिब से मिलने पर पूछती है कि क्यों वो कूड़ा बीनने का काम करता है और स्कूल क्यों नहीं जाता। To this he replies that there is no school in his neighborhood. इस बात का जवाब साहिब देता है कि बगल बगल कोई स्कूल ही नहीं है। The author jokingly promises to open a school. मजाक में ऑथर उससे कह देती है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल खोलूंगी। After a few days, साहिब asks if the author has opened the school. थोड़े दिनों बाद साहिब ऑथर से पूछता है कि आपने स्कूल खोल लिया? The author is very embarrassed at having made a promise that was not meant to be fulfilled. ऑथर को इस बात पे थोड़ी सी शर्म आ जाती है कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जो पूरा नहीं होना था। Nevertheless, she realizes that such promises are made to these children almost every day. फिर भी उसको ये रियलाइज होता है कि शायद ऐसे प्रॉमिस बहुत लोग इन बच्चों से कई बार करते होंगे, लगभग रोज ही करते होंगे। After some months of knowing him, the author asks साहिब his full name. कुछ समय की जान पहचान के बाद ऑथर साहिब से उसका पूरा नाम पूछती हैं। The author notices the irony in साहिब्स name, साहिब-ए-आलम, which means Lord of the Universe. साहिब अपना पूरा नाम बताता है जो है साहिब-ए-आलम, और ऑथर को यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट महसूस होता है। साहिब-ए-आलम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और कहाँ साहिब एक रैप्टिकर है। साहिब would not believe what his name means. She feels like that. उसको ये महसूस होता है ऑथर को कि अगर साहिब को उसके नाम की मीनिंग बताई जाएगी तो वो विश्वास नहीं करेगा कि उसके नाम का अर्थ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है। Unaware of the meaning of his name, साहिब roams with his gang barefoot on the street. अपने नाम की मीनिंग से अनजान साहिब अपने गैंग, अपने ग्रुप के साथ सड़कों पर barefoot, नंगे पांव घूमा करता है। The author curiously asks why they don't wear slippers. क्यूरियोसिटी से भरकर यानी जिज्ञासा से भरकर ऑथर उन बच्चों से पूछती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते। One replies that his mother does not bring them down from the shelf. एक बच्चा जवाब देता है कि उसकी माँ ऊपर शेल्फ पर रखी चप्पल को उतार कर उसको नहीं देती है। Another says he wants shoes. दूसरा कहता है कि उसे जूते पहनने, चप्पल नहीं पहननी। Moving across the country, the author has seen many children walking barefoot. इंडिया घूमते समय ऑथर ने ये बात नोटिस कर रखी थी कि पूरी कंट्री में, विलेजेस में स्पेशली, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और बच्चे भी जो नंगे पांव घूमा करते हैं। One of the explanation is that it is a tradition and not lack of money. एक एक्सप्लेनेशन ये आता है उसका कि barefoot घूमना केवल पैसे की कमी की वजह से नहीं होता, बस ये यहाँ का ट्रेडिशन था, परंपरा से बन गई है। Anis wonders if this is just an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अनीस यानी ऑथर को ऐसा लगता है कि शायद ये एक तरीका है अपने आप को poverty stricken बताने का, यानी अपनी गरीबी को जरूरत से ज्यादा शो करने का, barefoot या नंगे पांव घूमना। The author recalls a man from Udupi who as a young boy would pass a temple where his father was a priest and pray for a pair of shoes. ऑथर को एक वाकया, एक स्टोरी सी याद आती है। उडुपी का एक व्यक्ति था जो जब छोटा था तो जब वो एक मंदिर के पास, जहां उसके पिता पुजारी हुआ करते थे, मंदिर के पास से गुजरा तो उसने वहां पर ईश्वर से प्रार्थना की एक जोड़ी जूते के लिए। 30 years later, the author visited his town.
30 साल के बाद ऑथर फिर से उसके टाउन की ओर जाती है। बिहाइंड द टेम्पल देयर वॉज द हाउस ऑफ अ न्यू प्रीस्ट। अब मंदिर के पीछे नए पुजारी का बड़ा सा घर बना हुआ है। अनीस नोटिस द यंग बॉय ऑफ द प्रीस्ट हु अराइव्ड पैंटिंग। अनीस नोटिस करती है एक यंग छोटे से बच्चे को जो हाफता हुआ स्कूल से आता है। वो अपना बैग एक तरफ फेंकता है और उसने जूते जो पहने हुए थे वो एक तरफ फेंक देता है। The writer was reminded of the boy who prayed that he should never lose his shoes. राइटर को वो बच्चा याद आता है जिसने गॉडेस से, देवी से प्रार्थना की थी कि मुझे एक पेयर जूते चाहिए और मैं उनको कभी नहीं खोऊंगा। और एक तरफ वो एक ये बच्चा देखती है जिसके पास सब कुछ है और उसको अपनी चीज की वैल्यू नहीं है। The goddess had granted his prayer as most of the young boys that they now have shoes to wear. उस वक्त उस प्रार्थना को गॉडेस ने सुन लिया था और आजकल लगभग हर बच्चे के पास पैर में जूते तो होते ही होते हैं। As against this, the rag pickers in the author's neighborhood still remain barefoot. और इसी का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है इन रैग पिकर्स को जो कि अभी भी नंगे पैर सीमापुरी जैसे इलाके में घूमा करते हैं। Winter morning, the author sees साहेब outside the fenced gate of the neighborhood club. एक जाड़े की सुबह ऑथर साहेब को देखती है। एक बगल में उसके क्लब है, उसके चारों ओर एक फेंस्ड गेट बना है, उसके बाहर खड़ा है साहेब। He is watching a game of tennis. अंदर तो लोग टेनिस का गेम खेल रहे हैं और साहेब उनको देख रहा है। साहेब seems to be fascinated by the game. ऐसा लग रहा है साहेब को ये गेम, टेनिस का गेम बहुत पसंद है। He tells the author that sometimes the guard lets him in and then he can ride the swing. वो ऑथर को बताता है कि कभी-कभी जो उस क्लब का गार्ड है वो साहेब को गेट के अंदर जाने देता है और वो वहां जाकर स्विंग यानी झूला झूला करता है। The author notices that Sahib is wearing tennis shoes. Sahib tells her that someone gave them to him. ऑथर ये नोटिस करती है कि साहेब ने उस वक्त टेनिस शूज पहने हुए हैं और साहेब बताता है कि किसी ने उसको दिए हैं। The fact that some rich boy discarded the shoes because there was a hole in one of them does not bother him. सच्चाई ये है कि एक किसी अमीर लड़के ने उस जूते को इसलिए पहनना छोड़ दिया और पहनने से मना कर दिया क्योंकि उसमें से एक में छेद था जूते में, लेकिन साहेब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। For साहेब who has walked his whole life barefoot, it is like a dream come true. साहेब जैसे बच्चे के लिए जो सारी जिंदगी अभी तक नंगे पांव ही घूमा करते थे, उसके लिए ऐसा लगता है ये जूता जैसे उसका सपना सच हो गया हो। One morning the author sees साहेब on his way to the milk booth. एक सुबह ऑथर साहेब को देखती है कि वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। He is carrying a steel canister. उसने एक स्टील कैनिस्टर पकड़ा हुआ है। He informs the author that now he works at the tea stall and is paid ₹800 and all his meals. वो अब ऑथर को बताता है कि वो अब एक चाय की दुकान में काम करता है, उसके बदले उसको 800 रुपए मिलते हैं और तीनों टाइम का उसको खाना मिलता है वहां पर। But the author feels that साहेब is not happy. लेकिन ऑथर को ऐसा लगता है कि साहेब अब खुश नहीं है। His face has lost its carefree look. उसके चेहरे पर जो एक लापरवाह सा अंदाज रहा करता था वो अब गायब है। The steel canister जो seems heavier than the plastic bag. पहले वो कूड़ा बीनने के लिए एक प्लास्टिक का बैग पकड़ा करता था जो हल्का हुआ करता था, अब वो स्टील का एक कैनिस्टर, एक डब्बे सा बर्तन पकड़ा है जिसमें चाय कैरी करता है, वो बहुत भारी होता है, उसको लेकर उसको चलना पड़ता है। The bag was his, but the canister belonged to the owner of the tea stall. जो प्लास्टिक बैग हुआ करता था वो उसका अपना हुआ करता था, जबकि ये स्टील कैनिस्टर वो उस चाय की दुकान के मालिक का है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहेब अब अपना मालिक खुद नहीं रहा, वो अब किसी के अंडर में काम करने लगा है. That's all about the stories, children. Now I will tell you the second story. Here begins the second story. The second story is about Mukesh, who says, I want to drive a car and wants to be his own master. He has got dreams. So, let's begin. In Firozabad, the author meets Mukesh,
who insists on being his own master. फिरोजाबाद में ऑथर अनीस जंग एक और बच्चे से मिलती है जिसका नाम मुकेश है। वो बार बार जोर देता है कि मुझे अपना मालिक खुद बनना है। He wishes to be a motor mechanic. वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अनीस asked him if he knows anything about cars. अनीस उससे पूछती है, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? मुकेश replies that he wants to learn to drive a car. मुकेश जवाब देता है कि वो एक कार ड्राइव करना चाहता है, उसको सीखना चाहता है। The author feels that his dream is like a mirage amidst the dusty streets of फिरोजाबाद। ऑथर को ये फील होता है कि उसका सपना, मुकेश का सपना, फिरोजाबाद की डस्टी स्ट्रीट्स में जहाँ कांच बनाने की इंडस्ट्री है, वहाँ उसकी धूल भरी सड़कों पर उसका जो सपना है वो मृग मरीचिका की तरह है। मिराज या मृग मरीचिका का मतलब होता है जैसे रेगिस्तान में आप अचानक सोचते हैं कि यहाँ पानी है, दिखता है उनको, ऐसा वहम सा होता है। तो इसी तरह इसको भी, ऑथर को भी लगता है कि मुकेश का यह सपना बिल्कुल मृग मरीचिका की तरह है। Every second family in फिरोजाबाद is engaged in the business of bangle making, क्योंकि फिरोजाबाद की हर दूसरी फैमिली बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, चूड़ियां बनाने के धंधे से जुड़ी हुई है। फिरोजाबाद is the center of India's glass blowing industry, where generations after generations have been involved in this business. फिरोजाबाद इंडिया के कांच बनाने के उद्योग का सेंटर है, जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, इन्वॉल्व हैं। ऐसे में मुकेश का यह सपना कितना सच हो पाएगा, इसमें ऑथर को थोड़ा सा शक है। The people of Firozabad involve their children in the bangle making industry without knowing that it is illegal for children to work in the glass furnaces with high temperatures. फिरोजाबाद के लोग अपने बच्चों को बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में लगा देते हैं बिना ये जाने कि ये गैर कानूनी है, कि बच्चे गर्म भट्टियों में जहाँ पर बैंगल बनाई जाती है या कांच की पॉलिशिंग होती है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ जलती हैं। ऐसी भट्टियों में हाई टेम्परेचर जहाँ पर होता है, वहाँ पर बच्चों का काम करना गैर कानूनी है। बिना ये जाने वो इनको बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से जोड़ देते हैं। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, ऐसे सेल्स में ये बच्चे काम करते हैं जो डार्क होती है और डर्टी होती है, कोई रोशनी नहीं होती, बस बड़ी बड़ी भट्टियां जल रही होती हैं, ना वहाँ हवा है ना रोशनी है। If the law is enforced, almost 20,000 children would be out of the hot furnaces where they work day and night, often looking the brightness of their eyes. अगर कोई लॉ एनफोर्स किया जाए, कोई कानून लगाया जाए, तो ऐसे गर्म भट्टों से करीब 20,000 बच्चों को बचाया जा सकेगा, निकाला जा सकेगा वहां, जो दिन रात लगातार अपनी आंखों की रोशनी को खोते हुए वहां पर काम करते रहते हैं। मुकेश proudly announces that his house is being rebuilt and volunteers to take the author home. मुकेश बहुत गर्व से ऑथर को बताता है कि उसका घर फिर से बना है और ऑथर को फोर्स करता है, उससे कहता है कि चलिए मेरे घर। They walk down stinking lanes choked with garbage. जब ऑथर तैयार हो जाती है मुकेश के साथ घर जाने को, तो वो एकदम दुर्गंध युक्त गलियों से होकर गुजरते हैं जो कि गार्बेज यानी कूड़े से अटी पड़ी है। Past houses that are small and dirty construction with wobbly doors and with no windows. जो भी वहाँ पे घर बने हुए हैं वो बिल्कुल बहुत ही डर्टी कंस्ट्रक्शन है, टूटे फूटे दरवाजे उसमें लगे हैं और कोई खिड़कियां नहीं लगी हैं। Where families of humans and animals coexist in a primitive state. यहाँ पर ह्यूमन की फैमिली और जानवर साथ ही साथ रहते हैं, जैसे कि बहुत पहले ऐसा होता था। They enter a half-built shack, one part of which is thatched with dead grass, where a frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. वो एक आधी बनी हुई शैक यानी हट में एंटर करते हैं जिसका एक पार्ट कवर्ड है डेड ग्रास से। वहां एक पतली दुबली सी यंग औरत शाम का खाना बना रही है पूरे परिवार के लिए। She is the wife of Mukesh elder brother. Though not much older in years, she has the respect of a बहू। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, हालांकि उसकी उम्र बहुत नहीं है, लेकिन उसको उस घर में बहू का दर्जा प्राप्त है। She veils her face when Mukesh's father enters. वो अपने
मुंह को घूंघट से ढक लेती है जब मुकेश के पिता एंटर करते हैं। Mukesh's father has toiled hard all his life, first as a tailor and then as a bangle maker. मुकेश के पिता ने जिंदगी भर हार्डवर्क किया, पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, पहले एक दर्जी के तौर पे और बाद में बैंगल मेकर बन गए। Still the poor fellow has been unable to renovate his house or send his two sons to school. तब भी वो बेचारे अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में असक्षम रहे और ना ही वो अपना घर फिर से कायदे से बनवा पाए। All he could manage to do was to teach them what he knows about the art of bangle making. और जो कर पाए वो क्या था, केवल इतना ही कि वो अपने दोनों बच्चों को कला सिखा गए, बैंगल मेकिंग की कला सिखाते। Mukesh's grandmother has seen her husband go blind with the dust from polishing the glass bangles. मुकेश की दादी माँ ने अपने हस्बैंड को देखा है एकदम ब्लाइंड होते हुए, क्योंकि जब कांच की पॉलिश की जाती है जिस एटमॉस्फेयर में, तो उसकी पॉलिशिंग से जो डस्ट उड़ती है वो आइज के लिए बहुत डेंजरस होती है। तो उसकी वजह से मुकेश के दादाजी की आंखें चली गई थी। She believes in destiny. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. वो बिल्कुल डेस्टिनी में बिलीव करती हैं और कहती हैं कि क्या जो भगवान ने जो वंशावली दे दी है, मतलब बैंगल इंडस्ट्री में या यहाँ के वंश में जन्म दे दिया है, उसको क्या कभी ब्रेक किया जा सकता है। वो कहती है, born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles of various colors. अगर आप किसी बैंगल मेकर के कास्ट में जन्म ले लेते हैं तो वो लोग कुछ नहीं देख पाते सिवाय हरी नीली पीली वेरियस कलर्स के ढेर सारे रंगों की चूड़ियां और चूड़ियां, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा होता है। डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. इन अंधेरी झोपड़ियों में लैंप, ऑयल से जलने वाले लैंप के सामने, जिसकी लौ फ्लिकर मतलब हिलती डुलती सी रहती है, उसके सामने कुछ लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हैं, जो कि रंगीन कांच को वेल्डिंग के थ्रू चूड़ियों की सर्कल में, गोल गोल चूड़ियों में चेंज कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आंखें अंधेरे में रहने की ज्यादा अभ्यस्त हैं वनिस्पत के बाहर लाइट के, मतलब वो रोशनी में कम देख पाते हैं और अंधेरे में ज्यादा अच्छे से देख लेते हैं, उनकी आंखें इस तरह से एडजस्टेड हैं। They often end up losing their eyesight before they become adults. इससे पहले कि वो grown ups हों और बड़े हों, एडल्ट हों, इससे पहले ही उनकी आंखें लगभग चली सी जाती हैं। The author notices a young girl, Savita, in a drab pink dress, sitting beside an elderly woman helping in making bangles. ऑथर एक यंग लड़की को नोटिस करती है, सविता, जो डल बड़े से पिंक ड्रेस में बैठी है अपनी एक एल्डरली वुमन के साथ और उसकी चूड़ियां बनाने में हेल्प कर रही है। हर हैंड्स मूव लाइक अ मशीन, उसके हाथ एक मशीन की तरह चल रहे हैं। Anis wonders if she understands the sanctity of the bangles for Indian women. अनीस ये देखकर आश्चर्यचकित हैं और सरप्राइज हैं और जानना चाहती हैं और समझना चाहती हैं कि इन चूड़ियों की इंडियन वुमेन, भारतीय औरतों में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्ता है। The sad irony will suddenly dawn upon her. इस बात का एक बहुत दुखी सा कॉन्ट्रास्ट वो सामने देखती हैं कि सविता, जिस लड़की को वो नोटिस कर रही थी, शी विल बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमन सिटिंग बिसाइड हर, और ये सविता कल को बड़ी होकर इसी तरह से दुल्हन बनेगी और यही चूड़ियाँ जो वो बनाती आ रही है वो पहनेगी, और जिस तरह से उसकी ग्रैंड मदर अपनी लाइफ जीती आई है, जो उसके बगल में बैठी थी, वो भी इसी तरह की लाइफ जिएगी। In a voice drained of joy, the old lady tells the author that she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. एक ऐसी आवाज जैसे जिसमें से खुशी निचोड़ ली गई हो, ऐसी आवाज में वो बूढ़ी औरत दादी माँ कहती है ऑथर से कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक टाइम का भी भरपेट भोजन नहीं किया है। One wonders if Mukesh's father has achieved what many have failed to achieve in their lifetime. मुकेश के फादर ने फिर भी वो अचीव कर लिया है जो कि बहुत उसमें से ऐसे हैं जो पूरी लाइफ टाइम लग जाता है, वो कुछ अचीव नहीं कर पाते। He has a roof over his head
एटलीस्ट उनके सर पर छत है, बाकियों के साथ तो ऐसा भी नहीं है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी कैन बी हर्ड इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ फिरोजाबाद। घर में पैसा न होने की चीख चिल्लाहट लगभग फिरोजाबाद के हर घर से आती रहती है। नथिंग हैज चेंज ओवर द ईयर्स। सालों बीत गए पर यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ईयर्स ऑफ हार्डशिप हैव किल्ड ऑल होप्स एंड ड्रीम्स। सालों साल की कड़ी मेहनत ने लगभग सारी आशाओं, सारे सपनों पर पानी फेर दिया है। द ऑथर आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मेन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ कोऑपरेटिव। ऑथर वहाँ के कुछ यंग लड़कों से ये कहती है, उनको एक कोऑपरेटिव या एक कमिटी बनानी चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए खुद को। She learns the horrific truth that even if they get organized, they are taken to jail for doing something illegal and are beaten up. तो वो यंग लड़के जवाब देते हैं कि अगर वो इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, यूनिटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको जेल तक ले जाया जाता है और कुछ ना कुछ इलीगल करने का, गैरकानूनी करने का इल्जाम लगा के उनको बुरी तरह से पीटा जाता है। There is no leader among them. उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है। The author finds two distinct worlds in फिरोजाबाद। ऑथर को दो बिल्कुल अलग ही तरह की दुनिया फिरोजाबाद में नजर आती है। One is the exploited family caught in a vortex of poverty and the stigma of the caste in which they were born. एक है वो exploited families जो poverty stricken है और बैंगल मेकिंग कास्ट में जन्म लेने का दंड भोगती सी नजर आती है, जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। The other is a vicious circle of those who exploit them. The sahukars, the middlemen, the politicians, the lawmakers, the policemen and the bureaucrats. और दूसरा ग्रुप कौन सा है? एक शातिर लोगों का, कनिक लोगों का ऐसा ग्रुप जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनमें साहूकार्स हैं, मिडिलमैन यानी बिचौलिए, पॉलिटिशियंस, लॉ मेकर्स, पुलिसमैन और ब्यूरोक्रेट्स जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और इस बिजनेस का सारा फायदा उठाते हैं। मतलब जो लोग इस बिजनेस में लगे हैं और पूरी पीढ़ियों से बैंगल मेकिंग कर रहे हैं, उसका कोई भी फायदा उन घरों को नहीं होता और वो गंदगी में और ब्लाइंड होकर और भी बुरी बुरी चीजों को झेलते हुए सारी जिंदगी गुजार देते हैं। और इस बिजनेस का, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में बैंगल मेकिंग, और उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं और इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। They have created such a burden that a child accepts this as naturally as its father did. इन सब बातों ने, इन चीजों ने इतना ज्यादा बोझ एक बच्चे के ऊपर डाल दिया है कि वो उसको अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत मानकर इसी तरह एक्सेप्ट कर लेता है जैसे कि उसके पिता ने किया था। To do something else would mean to dare. कुछ और करने की इच्छा रखना या करना मतलब जोखिम उठाना। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और उनके ग्रो अप होने में, उस प्रोसेस में डेयर करना या जोखिम उठाना जैसा कोई भी काम, कोई भी शब्द शामिल नहीं है। द ऑथर इज फिल्ड विद जॉय व्हेन शी फाइंड्स दैट मुकेश थिंक्स डिफरेंटली। ऑथर थोड़ा खुशी से भर जाती है जब उसको लगता है और वो पाती है कि मुकेश थोड़ा अलग सोचता है। द बॉय इज फिल्ड विद होप। वो लड़का थोड़ी आशा से भरा हुआ है। His dream of being a motor mechanic is still alive in his eyes. उसी एटमॉस्फेयर में रहने के बावजूद भी उसकी आंखों में एक सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। He is willing to dare. वो जोखिम उठाने को तैयार है। अनीस asked मुकेश if he also dreams of flying a plane. अनीस मुकेश से पूछती है, क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो, उसकी भी विश रखते हो? मुकेश replies in the negative. मुकेश निगेटिव आंसर देता है, नो। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। वो कार के सपने से ही खुश है, मतलब उतना ही सपना देखना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ही डज नॉट डेयर टू थिंक अबाउट फ्लाइंग प्लेन्स। उसके लिए वो बहुत दूर की चीज है। अभी कार तक तो वो पहुंचने की हिम्मत रखता है, बट प्लेन बहुत बड़ी बात हो जाती है। एज फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और ये बात जब मुकेश निगेटिव आंसर देता है कि प्लेन अभी बहुत दूर है और वो सिर्फ कार में ही खुश है, कुछ प्लेन फिरोजाबाद में ऊपर से उड़ जाते हैं। चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ व्हाट हैव यू लर्न्ड? या तो आपको इस चैप्टर से क्या सीखना चाहिए? ये चैप्टर आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सेंसिटिव बनाने के लिए है। क्लास 12 पास करने के बाद आप एक सभ्य नागरिक बनोगे कंट्री के,
तो ऐसे में आप अगर सेंसिटिव नहीं हो, एक ऐसे सोसाइटी के एक ऐसे ग्रुप के बारे में नहीं सोच सकते, तो वी विल नॉट बी गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, एक ऐसे तबके के बारे में सोचने की। एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था इस चैप्टर में कि एक बच्चा अपनी देवी के आगे प्रार्थना कर रहा था कि मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए, जबकि दूसरी ओर कुछ सालों बाद उसी घर में एक और बच्चा है जो अपने जूते एक तरफ फेंक देता है, बैग एक तरफ फेंक देता है, उसको उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। तो प्लीज़ लर्न टू वैल्यू ऑल द थिंग्स यू आर हैविंग। अगर पेरेंट्स हैं तो उनको वैल्यू दीजिए, आपके पास जो कुछ भी एजुकेशन है उसको वैल्यू दीजिए। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है। नाउ आई होप you have liked it, enjoyed it and understood the whole chapter. Thank you so much.